हेलो विष्णुप्रिया तुम एका जॉइन कर आउ कड़े गले सब हेलो विष्णुप्रिया सर हाँ तुम आज्ञा एका जॉइन कर ओके आउ कड़े गले तुम दीटा गोटे चार्टा क्लास होइतला सर नहीं 4 रु क्लास थिला ना नहीं 5टा रु 7टा होची मो क्लास टा एटा 4टा रु ओके विल कंटिन्यू तुम एका लेट अस स्टार्ट गोटे सेकंड So we'll be studying Latin America, its political system, historical legacy, and so many things are there. This is one of the important chapters in the course. As you know, Latin America consists of many states. This may be Cuba, Brazil, Nicaragua, Argentina. These are the most important states. Peru, Bolivia in Latin America. It's not a single entity. It consists of many states. So there are a huge diversity in terms of people, in terms of society, in terms of geography, in terms of culture, in terms of politics. So there are so many diversities, but still in political science, we study Latin America as a single entity, though it is not a single entity in terms of politics. But we consider it as a single entity because there are a lot of commonalities and a lot of similarities as well as a lot of diversities. So there is a commonality in terms of language, history, institutions, political struggle, anti-colonial struggle, colonialism, colonial legacy, post-colonial society. So that's why we put it together as politics in Latin America or political system in Latin America, or how institutions have developed, how colonial legacy has shaped institutional arrangements, democratic arrangements, authoritarian arrangements in Latin America. They have a Greco-Roman Hispanic style. Now under Trump, you must be listening many things about Mexico, many things about Cuba, Argentina, Brazil, Bolivia, Peru, Chile, etc. So they have a long colonial history. Iberian powers like Spain and Portugal colonized entire Latin America. So you will be astonished to know there is a huge production of silver in Latin America. So mining of silver. As you find mining of gold in Africa, you will also find mining of silver in Latin America. And that was the most important industry during the earlier period of colonialism in Latin America. माने रूपा उत्पादन बहुत हुए सेठी रूपा खणी अछि तेणु सिल्वर माइनिंग जोटा हला तार 1560 दशक रु 1570 दशक पर्यंत the colonial powers Spain and Portugal produced silver, mined silver, and that was the largest contribution to the colonial economy during that period, and that's the largest investment of a capital that contributed to the growth of Western economy at the cost of Latin American economy. एते परिमाण रे से माने रूपा उत्पादन कले बा रूपा खणी खोलिकी बाहर कले सेटा होची सेते बेलकार सर्वाधिक पुंजी निवेश एवं एही पुंजी निवेश फल रे माने प्रचुर पैसा आनी की पाश्चात्य जो राष्ट्र विशेष करके स्पेन और अर्थनैतिक अभिवृद्धि बहु परिमाण रे हला and also at the cost of Latin America.
ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ମୂଲ୍ୟରେ ବା ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମାନେ ଏଠୁ ଲୁଟ କରିକି ସେମାନେ ନେଲେ ଦିସ୍ ଦ colonial exploitation of the minerals. Same thing happened, as you know, in Africa. In Africa, the colonial powers explored or mined gold. ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ସୁନାକୁ ଆଣି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ରଖିଲେ, ବିକିଲେ, ଲାଭବାନ ହେଲେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ରୂପା ଉତ୍ପାଦନ ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ହେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେଲେ। So this is called the drain was the wealth was drained from Latin America to finance capitalism in Europe. यूरोप रे जो पूंजीवादर विकास हला से लाटिन अमेरिकार पैसा रे धन रे संपत्ति रे अभिवृद्धि हला. So this is the dynamics of European economy or development of European economy during that period, which we have studied the growth of European economy at the cost of Latin America. Then the Indian people, Aztecs and Incas, they were transformed to poor peasants. So colonialism changed or transformed the entire class character, entire economic character of the local population. स्थानीय जे जनगण थिले मेनली भारतीय माने थिले अमेरिकन इंडियन को जाए से माने गोटे कृषक भल संबल थिला तांकर तांकू आस्ते आस्ते दरिद्र करैदेला जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन अत्याचार करिकी ता सहित तांको निर्यातित करिकी ऑप्रेस्ड इंडियन पीजेंट रे परिणत करला तो ये जो कंकरर माने जो माने दखल करी गले लाटिन अमेरिका को से माने सेटिकार लेबर को एक्सप्लॉइट करे स्थानीय जो पॉपुलेशन इंडिजिनस पॉपुलेशन जा कहूछु ताको होची अमेरी इंडियन पॉपुलेशन कीप इन माइंड दिस टर्म अमेरी इंडियन दैट मींस दे आर अमेरिकन इंडियंस सो अमेरी इंडियंस वर कन्फाइंड टू देयर विलेजेस बट दे आर सेंट टू वर्क इन माइंस इन मेक्सिको एंड पेरू मेक्सिको और पेरू रे जो रूपा खणी अछि सेठी काम करे से मन देले एवं स्पेनिश फोर्स आसीगला परे टोटल ताकर जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थिला जो श्रेणी व्यवस्था थिला बा सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था थिला ताकू पूरा ध्वंस कर देले से माने एवं ता से स्पेनियो माने स्पेनियर्ड्स तापरे से माने स्थानीय चासी जे थिले इंडियन माने ताकू मध्ये ध्वंस कर तांको अर्थनैतिक ध्वंस कर एवं फ्यूडलिज्म सेटी स्टार्ट कर देले feudalism nuwa prakara state as you find in India which have been enumerated in 6 मान 8 गुंटा of फकीरमोहन सेनापति को 6 मान 8 गुंटा को एटा होची भारतीय जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जमीदारी व्यवस्था ताकू से माने बढ़िले एवं नुआ ब्रिटिश जमीदारी व्यवस्था से माने तैयारी कर एग्जैक्टली सेठी स्पेन माने स्पेनियर्ड्स माने से माने लैटिन अमेरिका रे विशेष करके पेरू रे और मेक्सिको रे निजस्व को जमींदारी व्यवस्था तैयारी कले डिस्ट्रॉइंग द लोकल लैंडलॉर्ड सिस्टम और लोकल क्लास स्ट्रक्चर स्थानीय जा थिला तांको आगुरु ताकू पूरा ध्वंस कर दे नुवा प्रकार से तैयारी तो स्पेन जो राजा छिए तांको जमीर अधिकार देले सो दैट से माने कोन करिवे ना जमी अधिकारटा निर्भरशील हेबे राजाको ऊपर बा उपनिवेशिक सरकार ऊपर एवं विद्रोह करि परिबे नाही So they created a own system of grant of land. जमींदारी व्यवस्था जोटा लैंड गोटे लीज आकार देले मालिक देले नहीं लीज आकार देले तांकरी जमी तांकू लीज आकार देले सो इटा गोटे यूरोपियन फ्यूडलिज्म जेतले मरी जाउथला वर्ल्ड रे सेही समय रे सेठी जीवंत हला बा पानी पाइला बा जीवन पाइला बोली कुआ जाई पारे सेठिकार गोटे नुवा प्रकार सामंतवादी व्यवस्था बा जमींदारी व्यवस्था से माने तैयार कले तो स्पेन राजा जो लैंड को बांटी लेवा देले से माने माने गोटे डिवीजन ऑफ क्लास करे देले सो दैट से माने तांको विरुद्ध रे विद्रोह करिवे नाही एवं तापर कोन करिवे ना राजांकर प्रभाव रहइबो कंट्रोल रहइबो ओके सो हाउ मेनी ऑफ यू आर जॉइंड ओनली 4 एनीवे तमरो दीटा रु चारटा क्लास हेनी प्रदीप शुभश्री हेलो शुभश्री अरे जॉइन करी कोड पळेलो ना पंकजनी so you must answer anyway so the need for Indian labor resulted in the introduction of
division of Indian labor under which the officials had the right in the introduction right to allocate labor for public work and included work on private estates and mines. So Spanish colonialism tried to exploit the indigenous labor and force them to work. ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ପେରୁରେ ବା ଯୋଉଥିରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଲେବରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁଆ ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଠିକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହାଗଲା ମିଟା MITA ମିଟା ଅନ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଭାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଜମି ଥିଲା ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସ୍ମଲ୍ ସବଷ୍ଟିନେନ୍ସ ସାଇଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା ପିଜାଣ୍ଟ୍ରି ବା ସେଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଷ କରିକି ସେଇଥିରୁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଗଲା ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିଦେଲା ଏବଂ ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆଇନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତ ଏକ୍ସେସିଭ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହେଲା ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷଣ ହେଲା and indigenous people, the local people, the Amerindians are American Indians. So they were in thousands. So what they did, they brought African slaves from the Atlantic to put as laborers in their fields of mine and agriculture. The Portuguese, Portugal जो माने first European nation है जो उतरे slave raid कले west coast Africa रे ଏବଂ ସେଠୁ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ କିଣିକି they brought it to west coast and in Brazil and the Caribbean region ଏ ଯୋଉ slave plantation system କ୍ରୀତଦାସ ଆଣିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରେଇବା ଏଇଟା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲାଇଜେସନ କଲେ ଉପନିବେଶୀକରଣ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲେ ଏଇଟା ସହଜ ହେଲା ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ଗୋରା ଲୋକମାନେ they were considered as superior to the browns କଳା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉପର ବା ଉଚ୍ଚ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ଲବର ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କଲେ ରେସିଆଲିଜମଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ important characteristics of the nature of colonialism in the early periods of Latin America. Latin America ରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶକରଣ ହେଲା ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ପାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କଲେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି এটা interesting, you must listen to this. এটা বহিরে ବି ଅଛି ଦେଖିବ The Atlantic slave trade lasted from 1415 to 1817. 1451 ମସିହାରୁ 1870 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସ୍ଲେଭ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଲା ଏବଂ 10 ନିୟୁତ କ୍ରୀତଦାସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଗଲା କିଣା ବିକ୍ରା ହେଇକି ଅଣାଗଲା ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ସ୍ପାନିଶ ଆମେରିକାନ ମାନେ ତାଦେହରୁ 1.6 ମିଲିୟନ ବ୍ରାଜିଲରେ 3.6 ମିଲିୟନ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନି 2 ମିଲିୟନ ଏଟସେଟ୍ରା ନେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ବେସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଇନ୍ ବ୍ରିଟେନ ୟାଙ୍କ ଶ୍ରମରେ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ସୁଗାର ରମ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ ବା କାମ କରିବା ଇଏ ସବୁ ଯୋଗେଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରାରିଆନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଇଏ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ କଲୋନିଆଲ ଷ୍ଟୋରି ଇନ୍ ଲାଟିନ ଆମେରିକା So one thing emerged. One is lordship over the estate. जमीदारी व्यवस्था जो जमी estate माने कोन बड़ जमी बड़ अमाउंट रो जमी बा एरिया तापरे माने मालिक हले लॉर्डशिप मालिकाना जाहिर कल तो जो चासी माने से माने तांकर करदाता हेकि रहले बा तांकर ट्यूटलेज बा तांकर दायित्व रहे तो यहीटा एप्रिक फ्यूडाल सिस्टम था एवं ता सहित पुंजीवादी व्यवस्था एवं सामंतवादी व्यवस्थार समन्वय है जे मालिक मैंने लाभवान हेले चाषी मैंने क्षतिग्रस्त हेले सेफ प्लांटेशन माने कृतदास माध्यम चाष करा कौन प्रोड्यूस है कमोडिटी द्रव्य गुड़िक कौन उत्पादित होता ना कॉफी चीनी टबाको तमाकू यहाँ जाऊला वर्ल्ड सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस एनालिसिस प्रथम पर्यायर मुझे विश्लेषण कली आम कौन पाइले प्रथम कथा एंटायर लाटिन अमेरिका को स्पेन और पोर्तुगाल कॉलोनाइज करदे उपनिवेशीकरण करदे
लोक मान भीतर विभाजन करदे जमींदारी व्यवस्था करदे जमी नहीं गले जमीटा ग्रांट देले जमी कर्तृत्व रहिबो मालिकाना रहिबो पॉलिटिकल अथॉरिटी रहिबो आफ्रिका रु कृतदास मान आणले एठी जो कॉफी प्लांटेशन सुगर प्लांटेशन टोबाको जोटा तुम जानी लैटिन अमेरिका हूँ कौन माने कहते क्यूबा से एरिया टाकू पृथ्वीर गुड़ हांडी चीनी हांडी से मैक्सिमम चीनी गुड़ एगुड़े सब सुगार उत्पादित हुए तो से जो उत्पादित था वर्ल्ड मार्केट रे बिकिले एमाने लाभवान हेले कृतदास को व्यवहार कर समाज टाक पूरा ध्वंस कर हायरार्किकल करदे उच्च नीच करदे रेशियल वर्ण वैषम्य सृष्टि कले एंड अथॉरिटी जो बल प्रयोग कले क्षमता प्रयोग कले एथिरे जो राजांकर जो ऑफिशियल तांको दायित्व दियागला लोकल लोकंकर कौन क्षमता नथिला ये जो सामाजिक व्यवस्था नुआ जन्म है तार टॉप रे सभा ऊपर गोरा माने रहे तो स्पेनिश जो माने स्पेन नु जाइचंती तापर करिलु एमाने एमाने सब शासन करे शासन बाहर हाथ रहला सामाजिक स्तर मध्ये ऊपर रहले एठी इंडिया रे जेमि ओटा कास्ट सिस्टम अछि सेठी से प्रकार फ्यूडल सिस्टम बा अपार्थाइड सिस्टम रेशियलिज्म स्टार्ट हेला से माने मालिकाना जाहिर कले कर्तृत्व जाहिर कले क्षमता प्रयोग कले याकू कहला लैंडेड अरिस्टोक्रेसी बा जमीदार जो संभ्रांत श्रेणी एमाने हेले यूरोपियन मर्चेंट माने बाहर जाइछंती स्पेन पोर्तुगाल जाइछंती से माने केवल इकोनॉमिकली पावरफुल हेले पॉलिटिकली मध्ये आस्ते आस्ते पावरफुल है then अर्थनैतिक क्षमतार अधिकारी हेले राजनीतिक क्षमतार अधिकारी हेले जेम सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया इफ नॉट एग्जैक्टली कौन हला शुभश्री यू रेज क्वेश्चन शुभश्री टेल हेलो शुभश्री यू रेज्ड योर हैंड व्हाट इज योर क्वेश्चन को मुके पानी शुभश्री यू हैव अ क्वेश्चन शुभुची ना नहीं शुभश्री आर यू लिसनिंग पंकजनी प्रदीप हाँ हाँ सर शुभश्री कौन हाथ उठाउछंती कौन तांगर क्वेश्चन को तमरो दीटा सर क्लास हां सर भूल से हे गला बाजी वाला सर सेटा चल जे तमरो दीटा क्लास ला हिची सर सेटा हमें ना हूं एमपीएससी 11 रे ना हूं सर हमें ओके तो ये जो ओरिजिनल हैबिटेट जे लैटिन अमेरिका रो ये जो कंट्री गुडा करी से कंट्री रो दे वर मार्जिनलाइज से माने को कोन ठेसा कर दिया गला बा गोटे पटकु ठेली दिया गला गरीब कर दिया गला एवं ऊपर जो यूरोप रो जो वाणिज्यिक वाणिज्य माने जाइतले जेंति इंडिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी दे जॉइंड एंड दे what did they do they exploited the labor they exploited the raw materials and created a new hierarchical exploitative and unequal structure under their colonialism Spaniard colonialism and Portuguese colonialism so at the top European merchants are there economically powerful politically powerful and racially powerful and the bottom of the ladder sidra sabha tala pahachale यो इंडिजिनस पीपुल जहाँ आम आमेरी इंडियंस कहते अमेरिकन इंडियन कहते से माने शोषित है सभा तल रे से होती ओरिजिनल लोक ओरिजिनल मूल बासिंदा तापर आसीगले स्लेव माने जो माने आसले अफ्रिका रो आमदानी होकी सी मध्य तले रहिले अच्छा इन बिटवीन ताको मझिरे गोटे मुलाटोज बोली कहगला मुलाटोज होची जो क्रिलो और ब्लैक्स यांकर ऑफशूट तांकोटू जन्म होइचंती ताको श्रेणी तो व्हाइट और अमेरी इंडियंस ताकू कहला मेस्टिचोज स्पेनिश लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज रे ये माने मुलाटो को ऊपर रहले मेस्टिचोज स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी वाज क्लोजर टू फ्यूडल यूरोप यूरोप सामंतवादी व्यवस्था रे स्ट्रक्चर जा थला इति मध्ये से हला सो लैंडलॉर्ड माने अत्याचार कले तांकर मर्केंटाइल बिजनेस हला पॉलिटिकल पावर रहला शोषण कले कृतदास को लगे कि जा लाभ पाइले समान नहीं गले सो दीज आर दी operational aspect of Portuguese and Spaniard colonialism in Latin America. Okay. So तापर नुआ colonial economic social structure emerge कला जोटा मु कहली एवं इकोनॉमीटा यूरोप को समर्थन करा. That means if you are aware of the new theory that is of the center and periphery, the periphery is Latin America, center is Europe. The raw materials, the labor, the resources of Latin America were exploited, used
for the development of European capitalism. So there is a strong relationship between center and periphery model in the development of colonialism in Latin America. The Latin America जो उपनिवेशवादटा गढ़ी उठिला सेटा लाटिन अमेरिकार जो स्थानीय लोक तांको जमी तांको खणी तांको प्राकृतिक संबल एवं बाहर आमदानी हेतु अफ्रिकन स्लेव्स कृतदास यांकू व्यवहार करके यूरोप पुंजीवाद अभ्युदय एवं ये जो अर्थनीतिटा यांको पाखरे सरेंडर करिगला यूरोपियन अर्थनीति पाखरे. So what did develop? That developed global capitalism. विश्व पुंजीवाद विकास है का मूल्य विनिमय ना लाटिन अमेरिकार मूल्य विनिमय. तो ये जो institutions grow कला that we can say not pure feudalism or not pure capitalism. It's a kind of mixture of feudalism and capitalism. And interestingly, the capitalism was enriched by the feudalism in Latin America. The capitalism in modern Europe was developed by the feudal structure of Latin America. So this is why it is said this is the merger of feudalism and capitalism. Okay. This is the colonial period or global capitalism. You can use the dependency model to explain this because the dependency model developed in Latin America and because of this colonial experience. So the entire region, Samagra Anchal, the upper class, the Ucha Sreni, she would have landed oligarchy asila, Jamidaru asila, and जो यूरोपियन कैपिटलिज्म ताकू सर्व करा ब्रिटेन होगा स्पेन होगा पर्तुगाल. तो जेहेतु लाटिन अमेरिका कंट्री प्रचुर प्राकृतिक संबल अच्छी एंड सेगुड़िक शोषित है से माने रॉ मेटेरियल कंचामाल पठेले यूरोप को एवं अमेरिका एवं से कंचामालटा द्रव्य भाव में उत्पादित होकर विश्व बाजार में बिक्री है लाभटा से नहीं गले कॉलोनियल मास्टर. तो जो गवर्निंग एलिट शासक श्रेणी लैंड ओनर एवं इंडस्ट्रियलिस्ट इत्यादि. ओके. So this is all about the historical background of the colonial exploitation or process of colonization in entire Latin America. Okay. Just a minute wait karo. Tikke mo khali pani cha. Just a Okay. So now we'll go to political legacy. So राजनैतिक परंपरा कौन हम सीख लीजिए. What is the political legacy that we'll study? So there is a military campaign. ये जो आक्रमणकारी बा जो माने दखल करिया लाटिन को से माने सामरिक अटैक कले बा सामरिक भाव रे दखल करियाले. They did not settle down with their families. परिवार नै से रहि गले नै माने टेम्पोरली आसिले एवं तांका भितर वर्ण वैषम्यवाद थिला
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁପରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମେ ବଡ଼ ଆମେ ଗୋରା ଲୋକ ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଗ୍ରୋ କଲା ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। So there is a emergence of the political system on the basis of racial prejudice, colonial exploitation, and military campaign. So three features, three elements shape the character of the political system that emerged during the colonial period in Latin America. Latin America रो उपनिवेशिक समय रे जो राजनीतिक व्यवस्था अभ्युदय हैला बा विकास हैला सेतरे तीनोटी फैक्टर काम कला गोटे हला रेशियल प्रेजुडाइस आउट हला मिलिटरी कैंपेन आउट हला सुपरियरिटी बा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑथोरिटेरियन एक छत्र तो हैला कोन सेतरे से गोटे एक्सपीरियंस से माने कले जे लोकल लोक को संपूर्ण भाव रे मिलिटरी शासन ने अनिहिलेट कर दे हबनी ध्वंस कर दे हबनी पूरा तंग कंट्रोल को आनी। So the Spanish and Portugal colonizers or their government, सेतबेले तो मोनार्की थिला स्पेन ने एवं पोर्तुगाल डेमोक्रेटिक स्टेट से मान होंती से जो राजतंत्र राजा माने दे colonize the Latin American people, local people, the Amerindians, but could not control them, could not annihilate them. संपूर्ण भाव में तांको नियंत्रण को आनी पारले। What happened? They realized, these people realized that they need to be assimilated. तांको सांगरे नबाबू पड़े, तांको assimilate करियो पड़े, मिसेबू पड़े. So that was the objective at a later phase of colonialism when the colonial masters realized that they cannot control these people because they have a civilization, they have a history, they have a culture, okay? But they have their own hierarchy. Hierarchy माने ऊपर तल जो व्यवस्था विभाजित व्यवस्था तांको निजस्व थिला ताकू रिप्लेस करके ए जो स्पेनियर्ड माने ए माने निजस्व गोटे हायरार्किकल स्ट्रक्चर तैयारी करले। द लैटिन अमेरिकन ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म राजनैतिक एकछत्रवाद एवं एकछत्रवादी शासन एटा जो लैटिन अमेरिका रे वर्तमान आम देखुछन तार जो मूल रूट ऐतिहासिक रूट मूल एट तमे पाइबो ए जो कॉलोनियलिज्म केमिति ना स्पेनिश माने तळे दखल कले से एकछत्रवादी शासन सेठी तयारी कर गणतंत्र कोनोसी स्कोप नथिला एवं जो कल्चरल डोमिनेशन स्पेनियर्ड माने तांकर कल्चरल डोमिनेशन सांस्कृतिक प्राधान्य लैटिन अमेरिकन लोकन को ऊपर विस्तार तो सांस्कृतिक प्राधान्य माने सेवन कहले वी आर सुपीरियर देन यू वी आर racially superior. So they created their own feudal institutions. Though Latin American people have different kind of feudal institutions. Okay. तापर इधर कौन कैरेक्टर्स हुआ इसलिए पॉइंट उड़ा तुम लिख परियो what kind of political legacy they have. One is authoritarianism. Write it down. एकछत्रवाद. You can write it as authoritarianism. Second is elitism. Elite शासन. माने उच्च वर्गर शासन जो माने धनी जो माने रेशियली सुपीरियर बोल दाबी करूचंती ए माने शासन करिवे ए कल्चरटा सेउट आरंभ जोटा स्टिल कंटिन्यूइंग लैटिन अमेरिका टिल टुडे देन टू क्लास सिस्टम दीटा श्रेणी व्यवस्था शासक एवं शोषित एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड रूलर एंड रूल शासक एवं शासित ए जो श्रेणी विभाजन है देन हायरार्की जोटा तळ ऊपर व्यवस्था patrimonialism जाको हम patriarchy कहउछन लिखुछ ना are you writing the character of the political legacy in Latin America रो जो colonial political legacy उपनिवेशिक राजनैतिक परंपरा बा इतिहास बा ऐतिह्य छाडी के जाइछन्ती colonial master माने आजि तार आमे देखुछन सेठी तार रूट हला या तार कैरेक्टर हला या नंबर 1 हला authoritarianism are you writing please write call us सर एक्चुअली मु टिके बाहर अछि तो मु आसीथिले असाइनमेंट जमा करिया पई त आज ही मु रिटर्न करूची घर को तो मु बस स्टॉप रे ही बसिची तो मु से रिटर्न करि पारुनी आज ही असली कर दो तुम ग्रुप टे कर दो शेयर कर दो ओके थैंक यू सर अन्य मन राइट लिखुछ तो सीजना बस स्टैंड रे अछंती
Others should write. Number hela 1 hela authoritarianism. Second hela elitism. Third hela two class system. Fourth hela hierarchy. Fifth hela patrimonialism or patriarchy. पितृतंत्र व्यवस्था नारी विरोधी जोटा. Then corporatism. Corporate शासन. Corporate माध्यम बड़ बड़ कंपनी माध्यम लुंठन करिबा. Then militarism. सामरिक एकछत्रवाद बा सामरिक आक्रमण मिलिटरी माध्यम कंट्रोल करिबा. So these are the features of the colonial structure, and that legacy has been continuing in Latin American countries since a long period. That is interesting. Okay. So these are the character of colonial legacy. Then third point is centralization of authority. Write it down. Centralization of authority. एकछत्रवादी क्षमता व्यवस्था. Centralization of authority. Authority टा centralize एकछत्रवादी. तो इथरे जेमिति colonial master माने केमिति शासन करिबे. एमान जो गले स्पेन और पोर्तुगाल एमान सेठी शासन केमिति कले. भाइसरय आसी गले. से मेक्सिको सिटी रे रहिबे. लिमा रे रहिबे. देन लेटर न्यू कनाडा कोलंबिया जोटा एंड रिवर प्लेट जोटा अर्जेंटीना जोटा ना था रिवर प्लेट. The political tradition was of the authoritarian patrimonial rule. एकछत्रवादी पितृ केन्द्रिक शासन से माने प्रतिष्ठा कले यही जगह रे. को जगह रे लिखि दियो. मेक्सिको, लिमा, कोलंबिया, अर्जेंटीना ये गुडे सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वर्तमान सेतले ता ना सब अलगा थिला सेही समय रहले. That is in 1535, 1554, 1739, finally in Argentina 1776. भाइसराय का शासन आमर जेमि भाइसराय थे लॉर्ड क्लाइव हमर डेलाहाउसी सब पडिना से सेवळा भाइसराय. The political tradition was one of the authoritarian patriarchal rule as absolute and centralized. एमाने एकछत्रवादी एवं केंद्रवादी. The power आसिला कोठ किंग पाखरु आसिला यूरोप रु पोर्तुगाल और स्पेन रु किंग रो पाखु आसिला कोठी आसिला भाइसराय पाखु. जेमिति ब्रिटेन राणी बा राजा तांको क्षमता इंडिया रे जे भाइसराय थिले तांको दे देले. से लॉर्ड माउंटबेटन होंतु बा लॉर्ड क्लाइव होंतु बा लॉर्ड डेलाहाउसी तांको देले. ये सेवळा तांको देले हला. तापर से लैंड ओनर मान जमींदार मानकु देले शासन करे. किए भाइसराय लोकल जमींदार ताकु को गला हासेंडाडो तांको लोकल लैंग्वेज रे हासेंडाडो जाको हम जमींदार कहू. ए जो भाइसराय को तळे गुडाय कॉर्पोरेट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट रहे माने व्यवसायिक स्वार्थ रहला कि आ ता से अलग स्वार्थ रहे. एतरे चर्च रहला, मिलिटरी रहला, एलिट माने धनी लोक मान रहले. So each have their loyalty to the king. एटा हम तांकर जो कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पढु. राजा मानक प्रति अनुगत रहबो यूरोप रे एवं रिलीजियस मिलिटरी इकोनॉमिक अफेयर तांकर कंट्रोल रहे. The structure was thus vertically organized and all similarly authoritarian hierarchical nature. But they all are subservient surrendering to the crown, to the king or queen. यांका पाखरे क्षमता रहला कि सबु क्षमता उपरे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी हेले तांको देश रे न लैटिन अमेरिका बाहरे जे तांको नियंत्रण करथले ता से हेले क्राउन बा किंग बा क्वीन जे राजा रानी शासन हला. So there are a series of councils हला सेथरे रीजनल कोर्ट भलिया हला. कोर्ट अपील कले. लोअर लेवल ले लोकल गवर्नर रहले. बड़ बड़ एरिया तांको दायित्व दिया है गला विभिन्न टाउन विलेज इत्यादि. So governance structure is totally authoritarian, total patrimonial or patriarchic and total monarchical. There is no question of democracy in those political systems during colonial rule in Latin America. So ये व्यवस्था चलला. ताकू बड़ बड़ एरिया जो दायित्व दे रे से माने चलेले टैक्स अदा करे लोक अत्याचार कले बाड़ा पिटा कले इत्यादि. पोर्तुगाल मध्ये एटा हला कार स्पेन पोर्तुगाल मध्ये से कला. ब्राजिल ता अंडर थला ब्राजिल ले से पावरफुल स्पेनिश से माने कंट्रोल करे. करप्शन हला एवं अन्य माने सेठी प्रवेश करि पाले ने अन्य माने जे करे ताकू दंड दिया गला. तो इथिरे एंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाज सर्व or was there to serve the economic interest of capitalism in Europe. तो यूरोप रे जो पूंजीवाद विशेष करी स्पेन और पोर्तुगाल ले
तार सेवा करने एक शासन व्यवस्था से कले जोटा हूँ अथॉरिटेरियन अनडेमोक्रेटिक एंड सेंट्रलाइज्ड एक छत्रवादी गणतांत्रिक और केंद्रवादी तापर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर केंद्र पाखरे सबु क्षमता रही निजर प्राइवेट आर्मी रहा निजर लोक रही जो शासन करेंगे जबरदस्ती आदाय करेंगे कर एवं जो एलिट रही पैसा देवे से पैसा रोजगार करेंगे साधारण लोक हैरान हे शोषित हे पाखे सर्वनिम्न खाद्य वस्त्र बासक यू जिन न तो लाटिन अमेरिका यहाँ जोटा है गोटे गवर्नेंस स्ट्रक्चर काइंड ऑफ गवर्नमेंट सी मैंने डिसाइड कले कॉलोनियल मास्टर एथिरे इंटरेस्ट व्यक्तिगत स्वार्थ किसी ना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रहा ब्राजिल और चिली कौन कले ना अर्जेंटीना मेक्सिको ये लाटिन अमेरिकन कंट्री सो ब्राजिल और चिली ये किस दिन मेंटेन कले ये कॉलोनियल सिस्टम भितर एवं अर्जेंटीना मेक्सिको अधा शताब्दी अधिक समय ने बेड़ा कर तो बेसी जदि ब्राजिल की छाड़ देला जिते देश अच्छा सबु जगह रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा एवं तार क्षमता रहा क्या हाथ प्रेसिडेंट ये गोटे न्यू एलिट प्रेसिडेंट को साहाय्य कला शासन भागीदार है शासन व्यवस्था कला शासन सुविधा ब्राजिल टिके अलग है से जोड़े जड़े सम्राट थे एंटायर 19th सेंचुरी शासन करते जमींदार श्रेणी और कमर्शियल जो वाणिज्यिक श्रेणी पुंजीपति ये हाथ मिले लॉ एंड ऑर्डर हाथ में राष्ट्रीय क्षमता हाथ में आईन श्रृंखला हाथ में मिलिटरी हाथ में सो आम फाइनाली कहीपर जे ये जो शासक माने दे आर मेनली अथॉरिटेरियन अनडेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड तीन तुम लिख चर्च प्लेड ए वेरी पावरफुल रोल प्रोमिनेंट रोल in the development of colonialism and capitalism in Europe at the cost of Latin America. Latin America को शोषण करी जो पूंजीवाद अभ्युदय हला से गोटे चर्च बड़ भूमिका ग्रहण कला तो यहाँ कह जाए जे स्पेन अमेरिका को मान लाटिन अमेरिका जोटा शासन कला यहाँ कहीं ख्रिस्टियन फेथ को प्रचार करिया नो इट्स रॉन्ग इट्स अ पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रेट सिस्टम अर्थ ख्रिस्टियन धर्म से प्रचार कले मिशनरी माने जाइकी विभिन्न चर्च प्रतिष्ठा कले कॉलोनी प्रतिष्ठा कले लोक मान जॉइन करे इट्स राइट बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड चर्च वाज यूज्ड और द रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर यूज्ड फैसिलिटेशन समस्त ख्रिस्टियन धर्मावलंबी करेले सेथिरे सेबने शासन को चैलेंज करेंगे से भावी ये आम निज धर्मर शासन तेणु आम ये कर स्टेट वाज आइडेंटिफाइड विथ द चर्च देयर इज ए मिक्सचर ऑफ स्टेट एंड चर्च चर्च वाज यूज्ड टू सर्व द स्टेट नॉट वाइस वर्सा स्टेट वाज नॉट यूज्ड टू सर्व द चर्च स्टेट वाज यूज्ड टू स्प्रेड द चर्च चर्च धर्म एथि राष्ट्र भूमिका नथला राष्ट्र भूमिका राष्ट्र को शक्तिशाली करने व्यवहृत हेले माने को माने चर्च लोक रिलीजन बिकेम ए powerful tool in the hands of the ruling class to strengthen the colonial state, to strengthen the authoritarian state, to strengthen the class rule of the colonizers. तो उपनिवेशिक शासक मानकर शासक श्रेणी शासक मानकर शासन को दृढ़ीभूत करने चर्च को व्यवहार कला तो जो स्पेनिश चर्च स्पेन जो चर्च टा स्प्रेड करूला यहाँ बेसी इनटॉलरेंट था असहिष्णु था एक छत्रवादी था चर्च टा केवल धर्मीय अनुष्ठान नथिला मोर देन दैट अधिक थिला एटा कोन ना बैकबोन ऑफ द रेजिम कॉलोनियल शासन रो बा शोषण रो एटा मेरुदंड थिला बेसिस थिला if you study the history of all religions in the world you will find somewhere sometimes that religion was used जेमिति हमरो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप अछि बा स्टेट अछि राष्ट्र केमिति जन्म होला ना राजा माने होचंती भगवानकर अवतार तेणु जेहेतु राष्ट्र भगवान चाहे राष्ट्र है तो राजा माने भगवान चलते अवतार तेणु राजा मान को विरोध करने अर्थ धर्म को विरोध करवा भगवान को विरोध करवा यही जो माइंड टा दिगला अर्लियर पीरियड एंशिएंट टाइम्स रे जे तुम राष्ट्र को विरोध कर अर्थ तुम भगवान को विरोध कर सेम थिंग हैपेंड इन लैटिन अमेरिका चर्च वाज आइडेंटिफाइड द स्टेट so if you are opposing the state then you are opposing the church and you are opposing your religion you are opposing God
तुम यदि राष्ट्र को विरोध कर राष्ट्रद्रोह नहीं धर्मद्रोह धर्म सहित राष्ट्र को मिसई देवार जो थ्योरी से जोरदार व्यवहार कले यदि लोक मैंने जमी मागिले मजूरी मागिले यहाँ कहला धर्मद्रोह so there was a military interest there was a landed interest there is a corporate interest there is a capitalist interest and there is a religious interest in continuing for this and church plays that role. The Spanish church एवं Portuguese church ये माने बदले तो चर्च रो रोल टा एठी जाथला स्पेन सेठी लैटिन अमेरिका रो अलगा बदला ना कोन ना स्टेट रो इंटरेस्ट को सर्व करिया पे साने व्यवहार करे एवं प्रचार प्रसार करे. So state was not separated from religion. It was not a secular state. It was a theological state or religious based state. Jadu equality katha कहउथला there is no actual there is perceived equality. And देखा जाउथला equality भले but actual equality no. Okay. So this is all about what is it? The structure of the state as the basis of religion. So this is the study or situation that we found in this analysis. Okay. So the upper class always wanted to maintain the status quo. स्थितावस्था बजाय रखा विप्लव न हो परिवर्तन न हो आम शासक श्रेणी शासन कर सब रो ये एक व्यवस्था करने अपर क्लास शासक श्रेणी सब चाहिला एवं से जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टा देले स्कूल रे कॉलेज रे एवं यूनिवर्सिटी मान सो दैट ये जो धर्मीय शिक्षा माने पाइबे एमाने आउ राष्ट्र को विरोध करिवे नहीं से माने आइडेंटिफाई करिवे जे जो माने शासन करूछन्ती से माने आम चर्च रो लोक बा आम धर्म रो लोक वी शुड नॉट अपोज देम. ओके सो दैट वाज द यूज ऑफ रिलीजन फॉर स्टेट देन देयर वाज द यूज ऑफ मिलिटरी फॉर द स्टेट. मिलिटरी में पड़िवा 1930 दशक परे ए जो एकछत्रवादी शासक माने बिजनेस लेबर सेक्टर याकू केमिति हैंडल करिवे ताकू केमिति सांगरे आनिवे तांकर समर्थन जुगाड़ करिवे ये चैलेंज गोटे बड़ चैलेंज है कने माने तांग नथिले को माने जो पावर स्ट्रक्चर रे जो बिजनेस वाला मिडिल एवं लेबर सेक्टर वाला द साइज ऑफ द मिडिल सेक्टर एक्सपेंडेड एंड स्किल्ड वर्कर्स लेबरर्स ए माने सब आसी गले मिडिल क्लास जब कहला तो जमी जो बड़ चाषी से माने मध्य आसी गले तांकर समर्थन किन पाए गोटे बाटा हला जबरदस्ती बड़ प्रयोग करे जो मिलिटरी बहुत बड़ भूमिका रहिला एवं मिलिटरी पावर टाको से व्यवहार कले. So military became active in politics in Latin America. It was an interesting feature. देखियो पाकिस्तान ने सब कुछ military actual power टा military. So Pakistan military wants now that Bangladesh military should intervene and control politics in Bangladesh. आमे एबे सुनछु long way back in the 30s सेतबे military interfere करथल Latin American politics. Oh, that was not democratic. That is authoritarian. तो इथरे से माने कहले कोन जो माने प्रोफेशनल डिसिप्लिन से माने शासन करबा उचित बा राजनीतिक आसवा दरकार पॉलिटिकल पावर रखा दरकार तेणु लोकंकर जो समस्या थला ता विरुद्ध काले लोक विद्रोह करजिवे असंतोष प्रकाश करिवे तेणु मिलिटरी को जन आंदोलन को कोन प्रशमित करिया पय दबई देवा पय ए माने मिलिटरी को व्यवहार करे एथे कोन आसिला गोटे ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म आसिला अमलतांत्रिक एकछत्रवाद मिलिटरी जो माने सैंक्शन कला से जो ये समान हला. सो मिलिटरी रूल आसीला सेतरे एटा कंटिन्यू कला 1960s एंड 70s पर्यंत तो देखियो बारंबार मिलिटरी कू हेछि लैटिन अमेरिका कंट्री सामरिक विद्रोह हेछि तो से जो मिलिटरी रूल बा रोल ऑफ मिलिटरी इन एक्टिव पॉलिटिक्स और स्टेट स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड. आज लैटिन अमेरिका रे सामरिक विद्रोह होछि सेना बाहिनी राजेंद्र प्रवेश कर क्षमता ना चाहूँगी तार ऐतिहासिक रूट है तो मिलिटरी दीर्घमेयादी सूत्र लंग टर्म बेसीस व्यवहार करा एटा 60-70 दशक पर्यंत आसीगला स्वाधीनता पाइले कि भी मिलिटरी गोटे मेजर पावर प्ले कला बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल लीगेसी व्हिच इज नॉट देयर इन इंडिया बट देयर इन पाकिस्तान एंड
बांग्लादेश ये हला ये थर्ड यूनिट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट हम देखा कल्चरल लिगेसी कौन है व्हाट इज द कल्चरल लिगेसी सांस्कृतिक परंपरा होइथियो ताकर कौन दैट इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पॉजिटिविज्म इटा डोमिनेंट थिला लैटिन अमेरिका दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी ये गोटे साइंटिफिक थॉट एवं नुआ जो माने एलिट एवं नुआ मध्यवित्त श्रेणी तांको मध्य एटा बेसी पॉपुलर थिला सो व्हाट इज पॉजिटिविज्म पॉजिटिव इज साइंटिफिक थॉट साइंटिफिक कंसीडरेशन एवं गोटे वैज्ञानिक दृष्टिभंगी एमती रोड रेलवे तैयारी हला मेटेरियल प्रोग्रेस कथा आसिला एलिट को चाहिए दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन हवा दरकार इंडस्ट्री ग्रो करिया दरकार एवं गोटे कैपिटलिस्ट मेंटालिटी हवा दरकार ये जो एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी हवा दरकार दीज आइडियाज केम टू डोमिनेट मेनली द मिडिल क्लास मध्यवित्त श्रेणी जे इमर्ज करुतला लैटिन अमेरिका रे ता भितरे जो पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजीटा बहुत गुरुत्वपूर्ण था तो एलिट भावुला कौन प्राइवेट अकोमोडेशन धन संपत्ति बढ़ेब लाभवान हम उद्धृत मूल्य पाइब सो मेक्सिको रे 1876 रु 1911 पर्यंत पोर्टफोर डियाजो से मेक्सिको शासक थे सी पॉजिटिव आइडियोलॉजी विश्वास करते प्रचार तार किसी मिनिस्टर एम सब विभिन्न प्रस्ताव देले जोटा पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी प्रस्ताव था देन बड़ बड़ स्टेट जो लैंडलॉर्ड सिस्टम रे सी तार जो ग्रोथ है से माने पॉजिटिव आइडियोलॉजी करते मॉडर्नाइजेशन हवा दरकार आधुनिकरण हवा दरकार तो ब्राजिल रे कौन कॉफी तैयारी होतला चिली रे नाइट्रेट ऑफ कॉपर बोलिविया रे टीन अर्जेंटीना रे बीफ एंड व्हीट गोमांस एवं गहम जोटा सो ये जो अमेरिकन लैटिन अमेरिका जो प्रोडक्शन सिस्टम ये इंडस्ट्रियलाइज हवा दरकार मॉडर्नाइज हवा दरकार साइंटिफिक डेवलपमेंट दरकार ये बेसिस रे गुडी का सेकेंड लिगासी है एजुकेशन वाज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन लैटिन अमेरिका इटा प्रथम रे एजुकेशन टा धनी लोकंकर थिला गरीब लोकन पय एजुकेशन नथिला इटा प्राइवेट थिला बेसरकारी शिक्षा किंतु धनी लोक पाइबे एलिट माने पाइबे तो ये जो नॉन इगैलिटेरियन प्रिंसिपल बा असमान नीति इथरे तो एजुकेट करि होबनी कोन लोक सब लोक तो इथरे गोटे एटा डिफेक्टिव सिस्टम गोटे सेकंड सो दिस इज एजुकेशन तो एजुकेशन ता केमिति एक्सपांड करा जिवो एटी साइंस ये नथिला मेनली ये एजुकेशन थिला कोन रिलीजियस एजुकेशन तापर इंडिपेंडेंट मूवमेंट आसला एजुकेशन हम देखले पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी देखले आउ कोन आइडियाज पर्सनालिटी विषय स्वाधीनता आंदोलन आरंभ हो गला तो बबर्न माने स्पेन रे से माने शासन करथले लैटिन अमेरिका अष्टादश शताब्दी तो से माने ट्रेड जो रेस्ट्रिक्शन तक आस्ते आस्ते रिमूव कले मेक्सिको पेरी रे तापर 19th सेंचुरी ट्रेड एक्सपांड करी गला तापर इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप रे मुक्त वाणिज्य व्यवस्था शिल्पायन ये सब कथा आसीगला कमर्शियल रेस्ट्रिक्शन आसीगला तो 1810 बेलू को वार्स ऑफ लिबरेशन है सो नेपोलियन बोनापार्ट जो स्पेन आक्रमण कले एंड जोसेफ बोनापार्ट ये गले राज सिंहासन तार इमीडिएट कारण होची वार्स इन लैटिन अमेरिका तो स्पेन जो कॉलोनियल मास्टर माने से माने कहले जे गोटे फ्रेंच किंग तांकर लेजिटिमेट उत्तराधिकारी हो पारिबो ना तो लैटिन अमेरिका रे वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्वाधीनता संग्राम एटा 1810 रु 1825 भीतर आरंभ फर्स्ट फेज रे 1810 रु 15 एटा सक्सेसफुल हैला नै एते सेकंड फेज रे 1815 रु 1825 एटा मेनली मिलिटरी ये रे पर्सनालिटी जन किए आसिले ना प्रथम आसिले माइगुल हिडाल्गो ये स्पेन रो
ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देन पानामा कैनाल रु कैलिफोर्निया पर्यंत न्यू मेक्सिको टेक्सास ये एरिया को ये दखल करने ये गोटे इंपोर्टाट पर्सनालीटी सो ये जो विद्रोह है 1816 प्राय 2 लाख खंड लोक मरीगले 5 लाख लोक इंजोर्ड है जड़े साइमन बलिभार ये भेनेजुएला शासक गोष्ठी भितर थे सी स्पेन रे पाठ पढ़ी थे लंडन गले एवं बलिभिया रे से सक्रिय हेले राजनीतिक भाव में गोटे पब्लिक सर्वेंट सरकारी चाकरिया हेले एवं फर्स्ट फेज ऑफ वार इंडिपेंडेंस बलिभिया एक्सपीरियंस सम ऑफ द सेटबैक इज इन पॉलिटिकल मिलिटरी कैरियर पराजय है एते सफल हो पारे सी पूर्वतक को लूज करदे माने हरइले भेनेजुएला सफल हेले नहीं से न्यू ग्रानाडा को पलैले जे तक जेल न हो तो 1813 पुणी भेनेजुएला को से पलि आसते 1813 बर्तमान भेनेजुएला नाटा शुणुथ भेनेजुएला तैल किणुचंती जी ट्रम्प टैक्स बसे बोली कही इंडिया रो जो रिलायंस कंपनी नायरा कंपनी दी जन भेनेजुएला तेल आण मैक्सिमम वाले चाइना नौ अन्य कंट्री भी नौ वियतनाम रोटू भेनेजुएला किणी ट्रम्प कहला से हूँ भेनेजुएला ट्रम्प जो कहला तुम जी तेल किण मुझे टैक्स बसे से पुणी बैक कले बलिभिर जे भेनेजुएला को से स्पेन विरुद्ध युद्ध घोषणा करदे एवं निजे प्रतिष्ठा करदे भेनेजुएला सेकेंड रिपब्लिक पुणी कोलैप्स करगला तापरे 1815-1825 बलिभिर शक्ति जोगाड़ कले आंतर्जातिक सपोर्ट जोगाड़ कले अनेक परिमाण सफल हेले तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन कंट्रीज लाइक साउथ अमेरिका ये इतने सहज सुजोग देने तो बर्तमान आम देखुं राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक परिवर्तन तार मूल सब ये अच्छे विद्रोह मान तो 1817 साइमन बलिभिर पुणी भेनेजुएला को आसिले पुणी स्वाधीनता लड़ाई कले देन यथर भेनेजुएला रे बलिभिर कौन कले जो बेस सपोर्ट बेस टाक बढ़ाइले जो मैंने कला कृष्ण कृतास थे लोक स्थानीय अमेरिका बासिंदा थे आमेरी इंडियन जहाँ आम कहूँ भितर प्रवेश कले एवं गरिला वार टाइप रो युद्ध करिकी से रॉयलिस्ट मान को आक्रमण कले तो विक्ट्री ऑफ बयका युद्ध से विजय लाभ कले एंड बोगोटा को से दखल करगले 1819 पुणी न्यू ग्रानाडा गोटे देश अच्छी स्वाधीनता देले सो दीज आर द स्टोरी ऑफ बलिभिर हु वन द बैटल ऑफ काराबोवा एंड किछ दिन पर छाड़ी की से पड़े दिस इज स्टोरी ऑफ बलिभिर सेकंड ला जोस डी सान मार्टिन आउ जन योद्धा हेले जोस डी सान मार्टिन से अर्जेंटीना लिवर मुक्तिदाता साउथ अमेरिका रे जे स्पेन रु अर्जेंटीना को मुक्त करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करते मिलिटरी स्ट्रैटेजी बहुत शक्तिशाली थिला एवं से सफल हेले ओके सो दिस इज ऑल अबाउट जोस डे सान मार्टिन he studied in Spain, then he started his military career, then army officer नेपोलियन बोनापार्ट विरोधी युद्ध रे से करथले तापर सान मार्टिन स्पेन आड़ को लॉयल थिले जेतेबेले से नेपोलियन विरुद्ध लड़ सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सान मार्टिन 1812 रे तांको दायित्व दिया गला स्पेनिश रॉयलिस्ट मान विरुद्ध गोटे सामरिक विद्रोह तैयार करिया मैरिज पर फ्रॉम एन अर्जेंटीना अपर क्लास फैमिली स्त्री सान मार्टिन बिकेम मोर इन्वॉल्व इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द एरिया से स्थानीय राजनीति बेसी संपृक्त 1816 रे अर्जेंटीना जो प्रतिनिधि माने सेवन आसिले आलोचना कले तापरे ये तो गला ब्राजिल स्टोरी पेरू स्वाधीनता पाइला 1921 पेरू गोटे छोटिया लैटिन अमेरिका राष्ट्र सोन मार्टिन को कहगला सान मार्टिन की ये होचंती पेरू रो रक्षाकर्ता कारण से पेरू जाइए विद्रोह कले पेरू स्वाधीनता पाइला ओके सो की प्रकार सरकार हम से तो समझ ये ही पारला आलोचना ही पारला नहीं सो सान मार्टिन देन जोस डी सान मार्टिन जोड़ा ना लिखलो तो लिख कर यू कैन राइट इट डाउन देन साइमन बलिभार Miguel Hidalgo, they played major role in the independence of countries in Latin America from the colonial war.
औपनिवेशिक शासन ठारू मुक्ति पाइबार जो वार्ता मान देले आंदोलन कले ये 3 जन प्रमुख भूमिका ग्रहण करते से समय टिल 1930 1 मिनिट ଥିଲା 958 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା 1000 କେତେ ହେଲା ଆସିକି next unit we'll study the second unit. I will just start, then we'll finish tomorrow. I don't think tomorrow we have class on 1 resource endowment and the impact of social and economic formations. The socio-economic formation is Latin America re तार resource impact कौन that will study. Okay, so you must be knowing the term pampas. What is the pampas? Pampas माने कहले कौन? Pampas is a geographical area. Okay, Argentina. सेटा 5 province. Kodala Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santander, and Santa Fe and Entre Rios. इधर rich agricultural resources अच्छी 90% जो land improved land अच्छी सेही पाम्पाज रे अच्छी ये पांचोटी प्रदेश हला अर्जेंटीना रा पांचोटी प्रदेश जोटा कृषि भावरे कृषि भित्तिक अति शक्तिशाली अंचल बा उर्वर अंचल सेतरे हाई क्वालिटी कैटल माने पशु पक्षी जन्म नियंती एवं विकास करती तार सॉइल टा बहुत बढ़िया मृत्तिकार क्वालिटी बहुत बड़ एवं नेशनल मार्केट पाखरे एवं एक्सपोर्ट पे गुड़ाए सुजोग अच्छे से फर्टिलाइजर यूज हुए बेसी कहीं ना सॉइल रे एते फर्टिलिटी उर्वरता अच्छी तुम सार दबा दरकार दिस इज कॉल्ड एज द सक्सेस स्टोरी ऑफ पाम्पाज इन अर्जेंटीना
आर्जेंटिना रे इटा होची फूड मार्केट बोली कुआ जाए बा फूड बास्केट बोली कुआ जाए आर्जेंटिना 19th सेंचुरी आर्जेंटिना बहुत सेटा उर्वर अंचल एवं सेठी आर्जेंटिना सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम ए रोटे कन्जेनियल एनवायरनमेंट तैयारी कले तो 1850 रु 1880 भितर पाम्पार जो लैंड इतरे विराट परिवर्तन है एवं यार आग्रारियन इकोनॉमी आर्जेंटिना तापर गभीर प्रभाव कहीं यार कारण गुड़िक कौन ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवरथ्रो ऑफ द डिक्टेटर रोस्टाज इन 1852 एक्सपैंडिंग मार्केट है क्वालिटी ऑफ सॉइल रहा एवं नोमाडिक जो इंडियन हंटर थे बाहर करदे जो शिकार करते साउथ वेस्ट को पठेदेले इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टोरल टेक्निक्स तेणु पशुपालन कर कौशल एवं कृषि कर कौशल व्यवहार है इमिग्रेशन इटालियन लेबर से आसीगले रेलवे नेटवर्क तैयारी है एवं ट्रांसओशेनिक ट्रांसपोर्ट समुद्र व्यवहार करागला केमी ट्रांसपोर्ट करा फॉर ऑल दीज रीजन्स पाम्पास ग्रीव पाम्पार अभिवृद्धि है पाम्पार विकास पाम्पा कौन मन रख तो इट इज ए 5 प्रोविंस ऑफ आर्जेंटिना ता भीतर गोटे प्रोविंस ना ला पाम्पास ता ना अनुसार एटा गोटे उर्वर कृषि अंचल जोटा आर्जेंटिना विकास पे बहुत सहायक है पाम्पार लक्षण गुड़िक कौन सी ये जो लैंड टा केमिति यूज हम एवं से लैंड रे कृषि उत्पादन बढ़िबो कम पैसा लोक पाइबे गुड़ाए फैक्टर थे सेठी 2 कोर सेटलमेंट अलाउड करागला 1840 रे गोटे पास्टोरल फार्मिंग हबो माने पशुपालन हबो देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेजर्ट मरुभूमि की से माने दखल करिवे तो पाम्पार एरिया टा डबल है तार तो जमी परिमाण बेसी गला चाष बेसी हबो तो इटाली और स्पेन रु जो माने चासी आसिले माने इमिग्रांट जाऊ कुआउची से माने आसिला परे सी सेठी टेनांट मान टेनांसी अनुसार भाग चाषी अनुसार फार्मिंग कर तो यूरोप रो कॉलोनाइजेशन सेठी खत्म हैला एवं एमाने कले डायरी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट छोट छोट स्मॉल ऑपरेटर ग्रो कले एवं एटा फले को गला गुड़ाए लाभवान से फॉरेन टेक्नोलॉजी व्यवहार से फॉरेन टेक्नोलॉजी एवं मीट उल जो उल पशम वस्त्र मेंढा चाष जो हुए एवं मांस इट लिंकन शिप वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम इंग्लैंड गोटे मैनचेस्टर बड़ धरण जो ब्रांड मेंढा लिंकन शिप से इंट्रोड्यूस है गोटे न्यू ब्रीड आसला प्रोटेक्शन दिगला यार इकोनॉमिक इंपैक्ट कौन है ना अर्थनीतिर अभिवृद्धि है 25% टू 50% कल्टिवेटेड लैंड कॉलोनाइज हो गला यूएस रु इंपोर्ट होता बर्तमान इंपोर्ट है नहीं ये गहम एक्सपोर्ट कला एते गहम उत्पादन है व्हीट बाजरा एवं अन्य अन्य कृषिजात द्रव्य एवं 1914 रु 60% कल्टिवेटेड लैंड यही क्रॉप गुड़िक लाभकारी फसल जोटा ताको व्यवहार व्यवहृत है तो जो पाम्पाज रो शोषण आरंभ हो गला एग्रीकल्चर मार्केट बाहर तैयारी करागला लोकल लोक पाइले नहीं से असुविधा पड़ गए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आर्जेंटिना फ्रॉम 1853 रु 1930 पर्यंत माने ऑलमोस्ट 8 इयर्स 8 डिकेड्स तो से जो मीट और सीरियल वर्ल्ड मार्केट जो थिला माने बाजरा जातीय जो सीरियल डाली जातीय जिनस एवं मांस इटा वर्ल्ड मार्केट को सप्लाई कर फल कौन है ना अदर प्रकार जो प्रोडक्शन होता सुगार कॉटन वाइन ये सब कौन चेसा कमी तो प्रोसेसिंग ऑफ लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड जो डोमेस्टिक डिमांड थी सी अफेक्टेड है तो इकोनॉमी ग्रो करिगला लाभवान है किंतु आर्जेंटिना साधारण चाषी लाभवान नहीं एटा कॉलोनियल मास्टर्स लाभवान एक्सपोर्ट हो सामाजिक प्रभाव कौन रहा जेहेतु आर्जेंटिना इकोनॉमी की स्पेनिश में आसीगले से आस्ते आस्ते दखल कले तो फॉरेनर आसिले से रहिले पॉलिटिकल पावर एंजॉय कले या डोमिनेट कले तो सोशल स्ट्रक्चर वाज समहाउ पंक्चर्ड तो पाम्पाज ग्लोरी पुणी कहीं चलीगला ना गोटाए कॉलोनियल बूम बा या ग्रोथ करने ठीक नहीं लोकल एग्रीकल्चर नष्ट हो गला या किसी ग्रोथ है नहीं ये प्रॉब्लम गुड़िक से गुड़ाए आस
तापर जो इकोनॉमिक साइकिल आसिला एवं सोशल इंपैक्ट हम पढुचंती एथरे अर्जेंटीना गुडाई लॉस कला हला एथरे तापर आसिला येला अर्जेंटीना कथा तापर चिली रो देखिबा चिली रे कॉपर और गोल्ड माइनिंग हला कॉपर माने बुझ पड़छो तंबा बहुत अच्छी से जो माइनिंग करे पुणी सेटा नहीं गले जिमिति रूपा खणी से माने कले पेरू रे मेक्सिको रे ये से वाला एठी चिली रे सॉरी सोना खणी पाए सोना उत्पादन करके नहीं गले एवं कॉपर नहीं गले स्थानीय लोक माने भिकारी हेले बाहर लोक माने कॉलोनियल मास्टर दे बिकेम द गॉट द प्रॉफिट गोटे हिसाब कहूची जे 1816 रे पूरा एनुअल एवरेज आउटपुट 157,000 केजी हेगला गोल्ड हला कॉपर मध्य सही परिमाण रे एक्सप्लॉइटेड हला फर्स्ट फेज रे सेकंड फेज रे थर्ड फेज गोला कोडे नाही बाहरु गला किंतु चिली रो अर्थनीतिरा पूरा नष्ट है सेकंड फेज रे चिली जो कॉपर एक्सप्लॉइटेशन ता यूएस रे जो कॉपर टेक्नोलॉजी रो उद्भावन है तंबा टेक्नोलॉजी तंबार व्यवहार अलग भाव है तो डिमांड बढ़ियाला तो चिली रु नहीं गले तो खणी खोल देले सुना नहीं गले कॉपर नहीं गले लोक मान को गरीब कर देले से माने लाभ है जो कथा मूलरु मु कहितली द यूरोपियन कैपिटलिज्म was developed built at the cost of Latin American exploitation लाटिन अमेरिका रो प्राकृतिक संबल से रूपा हो सोना हो तंबा हो प्राकृतिक खनिज पदार्थ हो नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कॉफी चाहा चीनी एगुड़िक हो या शोषण कर नाइट्रेट नंबर सब निज फोटो इंदी छाड़ दाना एटा साउंड बंद कर बाबूरे लाइसेंडर क्लास तमर बंद कर दो तुम कोड बुलुजी कथा हो ना कोन सो चिली रे नाइट्रेट इंडस्ट्री नाइट्रेट तुम जानथो फील्ड एक्सप्लॉइटेशन हला माइनिंग हला जोटा टापाका प्रोविंस रे सेटा ब्रिटिश हैंड को पड़े ब्रिटिश नियंत्रण यार समय अर्थनैतिक प्रभाव कौन हला ना स्थानीय लोक माने दुर्बल हेले गरीब हेले तांकर डेवलपमेंट हला नै एवं सामाजिक प्रभाव है ए कॉलोनियल मास्टर माने एलिट क्लास माने ए माने शक्तिशाली है ओके ए माने पावरफुल है सो दिस इज ऑल अबाउट द टू चैप्टर्स फर्स्ट हमें हिस्ट्री लेगेसी गुडा आलोचना कले सेकंड जो इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन उपनिवेशीकरण रो सामाजिक अर्थनैतिक प्रभाव इटा जोटा हला इथरे प्रचुर परिमाण रे प्राकृतिक संबल गोटा हला गोल्ड गोटा हला कॉपर सुना एवं तंबा आ गोटे हला कोन रूपा नाइट्रेट कॉपर ये एक्सप्लॉइटेड हला प्रचुर परिमाण खोली के नहीं गले से माने लाभ रे गरीब पछ दिस इज द नॉर्मल कॉलोनियल पैटर्न ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लॉइटेशन development of underdevelopment that we came across from all kind of colonial exploitation in the entire world. So colonialism means economically exploitation of labor, exploitation of natural resources. अर्थनैतिक भाव रे उपनिवेशिक शासन रो अर्थ हला प्राकृतिक संबल रो शोषण सस्ता श्रम खोजिकी शोषण This is economic aspect of colonialism. Politically, it means creation and sustenance of authoritarian rule. राजनैतिक भाव रे यार अर्थ हला एकछत्रवादी अगणतांत्रिक पितृकैद्रिक सामरिक शासन रो प्रतिष्ठा गणतंत्र नाही स्थानीय लोक मानकर अधिकार नाही they don't have any voice any right to say in government affairs सरकारी परिचालन रे बा सरकार परिचालन रे स्थानीय लोकंकर भूमिका किछ नाही बा जदी अछि निम्न अछि कॉलोनियल मास्टर जी जे प्रभु उपनिवेशिक प्रभु मालिक से माने एंटायर प्रोग्राम को कंट्रोल येला गोटे पार्ट दिस इज पॉलिटिकल
What is social impact of colonialism in Latin America? Latin America रे उपनिवेशिक बादर सामाजिक प्रभाव गुड़िक सामाजिक प्रभाव है the entire social structure in these countries were destroyed. Latin America रो राष्ट्र मानकर से मेक्सिको हो, चिली हो, पेरू हो, अर्जेंटीना हो, ग्रेनाडा हो, वेनेजुएला हो, सबु राष्ट्र जो सामाजिक व्यवस्था तांकर थिला ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल मूल अधिवासी जी मूल निवासी तांकर सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को ध्वंस कर दे colonialism planted तैयारी कला सृष्टि कला a colonial culture racial culture patriarchal culture सेठी औपनिवेशिक पितृकेन्द्रिक वर्ण वैषम्य संस्कृति से लदिता What is its impact on religion? धर्म यार प्रभाव कौन? The local religion was destroyed or subsidized or suppressed. स्थानीय जोटा धर्म ताकू से माने गोटे ऑनलाइन क्लास रे पर फोन कर ताकू से माने ध्वंस करके चर्च सिस्टम क्रिश्चियनिटी इम्प्लांट कले चर्च प्लेड ए मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द colonial state and in legitimizing the colonial state and in establishing the hegemony of the colonial state. चर्च रो भूमिका धर्म भितर सीमाबद्ध है कि रहला नहीं. Church was not only a religious institution, it became a political institution, it became a social institution, it became a cultural institution. मुख्यतः गोटे राजनैतिक अनुष्ठान में परिणत हला. चर्च माध्यम रे स्पेनिश एंड पोर्तुगाल कॉलोनाइजर्स स्पेन एवं पोर्तुगाल जो उपनिवेशिक शासक माने दे लेजिटिमाइज ट्राई टू लेजिटिमाइज द कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल सरकार को आईन सिद्ध करेले एंड एस्टाब्लिश्ड इट हेजिमोनी यार प्राधान्य विस्तार करने पे साहाय्य कले एंड स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू मिशनरी के मानव जो क्रिश्चियनिटी प्रचार कले तार उद्देश्य धर्मीय हवा सहित राजनीतिक मत. ओके, दिस इज अनदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ colonialism which did not happen in India. इंडिया रे ब्रिटिश colonialism कौन कला से जबरदस्ती ख्रिस्टियन धर्म प्रचार कराने के जानी थला जे ख्रिस्टियन धर्म एठी प्रचार करियो शासन करि परियो ना. It did not touch upon the religious sentiments of Islam and Hindu. हिंदू धर्म रो लोक मानकर बा मुस्लिम धर्म लोक मानकर धर्मीय व्यवस्था को ये बेसी आक्रमण करने ब्रिटिश बा कास्ट सिस्टम को आक्रमण कर कारण तार मूल उद्देश्य कौन शासन कर सी कहीं हाथ मार गंडगोल कर जदिव मझे मझे मिशनरी आसी धर्म प्रचार कर बहुत जगह ख्रिस्टियन कर but not aggressively like in Latin America. This is the difference between the Latin American colonialism and colonialism of India. Okay. Don't make this happen. Third, you will find all over the world same kind of colonial exploitation, colonial dominance, hegemony. There are similarities as well as the differences. Similarities are exploitation of raw material, exploitation of labor, development of capitalism, development of feudalism, etc. सेठी इंटरेस्टिंग हला जे feudalism और capitalism रो मिक्सचर हला Latin America. When feudalism was dying in Europe, जेतले feudalism ता यूरोप रे मृत्युवरण करथला ये ताको पानी देकी वंचले कोठी Latin America colonial master. So they did not develop capitalism abruptly. Capitalism ता हठात से तैयारी करी बढ़े देले करि पारन था. Feudalism सहित capitalism बढ़. So capitalism in Europe was enriched by the feudalism in Latin America. Latin America रे सामंतवाद पूंजीवाद रो यूरोप रे पूंजीवाद को रुद्धिमंत करेला बा शक्तिशाली करेला बा बढ़ेगा. Okay. So this is a very complex story. This is the complex dynamics of colonial operation, colonialism, colonial ideology, colonial politics, colonial culture, colonial religion, colonial state in the entire Latin America. We have to learn and make our learning experience rich by going through it.
So in this class, I have tried to explain the first two chapters. One is how colonialism came to Latin America, how Portuguese and Spaniards invaded Latin American states and Latin American societies, how they established their hegemony, established their state, how they exploited the natural resources, how they changed the social fabric and character of Latin American state. So what is the relevance of studying this? Now, Latin America is a rich region. We have experiences of military rule, democratic rule, authoritarian rule in Latin America. And the historical roots of these lies in the colonial past of Latin America. ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିକାଶ ହେଉଛି, ସବୁର ମୂଳ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ ବା କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତମେ ପାଇବ। You will be astonished to know there is development of two theories from Latin America. One is theory of dependencia and theory of development of underdevelopment. Andegunder Frank and UN Commission on Latin America that created a theory that is center and periphery or development of underdevelopment or theory of dependencia. The center है कि यूरोप, पेरिफेरी है लाटिन अमेरिका। तो पेरिफेरू माल जीव, कंचा माल जीव, सेठी उत्पादित है पुणी टी अधिक रेट बिक्री हो, अलग जाए अधिक रेट बिक्री हो। इठी लोकमान को शोषण करा हबो कम मजूर रे, एक्सप्लॉइट करा जीवो, एक्सप्लॉइटेशन फल है जे पोर्तुगाल अभिवृद्धि हबो। Then there is the growth of this Spain at the cost of Latin America. So all over the world, when there is a colonialism, where there is a colonialism, there is exploitation of the periphery by the center. The entire European capitalism, entire development story of Europe is not on its own. It is purely on the basis of the exploitation of natural resources and of labor and of the indigenous population in those countries by the center's capitalist system. So Europe not only has invaded, it has totally exploited all the natural resources. The valuable gold, the valuable copper, the valuable silver, all the natural resources, the agriculture products, all have been exploited by the colonial masters. So the fate of Latin America as a underdeveloped part of the globe is purely only due to the colonial exploitation. वर्तमान लाटिन अमेरिकार जो विकास है नहीं, अभिवृद्धि है नहीं, एक पछुआ अंचल भाव रही जदिव लाटिन अमेरिकार बहुत कंट्री डेवलप कर क्यूबा देख, चिली देख, मेक्सिको देख, दैट डेवलपिंग. Brazil is a now developed, going to be developed country. So the story of exploitation is the historical basis of the underdevelopment of this Latin American country. Latin American देश मानकर जो विकास है नहीं, अनुन्नतता थिला बा आज अनेक देश रे अछि, तार कारण होची सेटिकार शोषण बाय कॉलोनियल मास्टर्स. औपनिवेशिक प्रभु माने सेठी सेही प्रतिष्ठा करछि. Now let us come to the story of democracy in Latin America. Why democracy is weak in Latin America? Why there are military revolution, authoritarian rules? Why? Because of colonialism. Colonialism established undemocratic political structures, undemocratic social structures, and that laid the basis of authoritarian regimes, undemocratic regimes, oppressive regimes. अत्याचारी एकछत्रवादी और गणतांत्रिक शासन व्यवस्था आज यदि लाटिन अमेरिका अच्छी तार कारण हूँ उपनिवेशवाद. कारण उपनिवेशवाद गला स्पेन राजा ताको नियंत्रण कले, पोर्तुगीज नियंत्रण कला, तो कॉलोनियल मास्टर माने सेठी एक प्रकार एकछत्रवादी पितृतांत्रिक अगणतांत्रिक शासन व्यवस्था तैयारी कले जार ऐतिहासिक भित्रे प्रभाव रे आज सेठी मध्य एकछत्रवादी शासन व्यवस्था चलछि. सो दिस इज द रीजन व्हाई colonialism has devastated socially, politically, economically, culturally, religiously the entire Latin America. So you'll find many similarities of colonial exploitation, colonial structure, pattern all over the world, and also specific characters and dissimilarities. So in Asia, colonialism is something different. In Latin America, it is something different.
and there are also similarities. Exploitation of cheap labor, raw material, other resources is the similar pattern of colonial dominance over the world. And specific character of these Latin American countries is another factor that is you will find absent in other patterns also. तो आज लैटिन अमेरिका रे जहा हेची विपर्जय बा अनुन्नतता तार कारण होची कर the local social structures are demolished, the hierarchical pattern was established, and you will find patriarchy was implanted. It is not that Latin American society was not patriarchal, but in comparison to Europe, it was more women friendly than the European nations and societies. So the Spaniards established their patriarchal rule in Latin America. Latin America रो पितृ केंद्रिक व्यवस्था आम तो जा ओडिया कहूचे पितृतंत्र तार जदि स्ट्रांग रूट्स तुम देखिबो सेटा होची colonial masters. Portuguese society, Spanish society was not so much gender equal. So this is the reason why we have to study and learn from the Latin American experience and make it relevant to our experiences of establishing democratic society, democratic state and democratic culture. तो यही एक्सपीरियंस रु आमे लर्न करि परिबा शिक्षा लाभ करि परिबा जे आमे केमिति हमरो समाज को बा राष्ट्र को बा संस्कृति को गणतांत्रिक करथि. So I gave you detailed analysis of chapter 1 and 2. Now that is finished. I think we don't have a class tomorrow. That is again on fast. So you join by maximum 5 भीतर समस्त join कर जाओ. ये दीटा chapter बहुत important. We will study that. Okay. I hope you have noted it down. Note कर दी थी समस्त मैं आशा करूँगी. So point को I will ask you again in the next class. Okay. So I need not start a new chapter because it is the end of this chapter. Now it is 6:54 or 55. We have 5-6 minutes left. So it is better to stop here. The stories of Latin America, beginning of colonialism, beginning of political structure, emergence of authoritarian structures, racialism. So I explained you the basic characteristics of colonial pattern of exploitation, dominance, governance in Latin America. One is authoritarianism, another is patriarchalism, another is racialism, another is undemocratic culture, destruction of social structures, dominance of unequal social structures, hierarchy, another is hierarchy. So these are the features of the colonial pattern of Latin American states and societies. So what Latin American states and societies faced in their post-colonial period. So we have to contextualize that in their colonial period. Because the colonial period have shaped their character of politics, character of society, character of culture and character of religion. हमें जहाँ जहाँ आज लैटिन अमेरिकन समाज रे देखुचन जहाँ को हमें कहते पोस्ट कॉलोनियल पीरियड बा उत्तर उपनिवेशिक समय जो थे उत्तर उपनिवेशिक पीरियड रे से माने समस्यार सम्मुखीन हो द मेजर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन गणतांत्रिकरण केमिति करिवे मेजर चैलेंज ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट सार्विक विकास केमिति major challenge of a democratic culture, गणतांत्रिक संस्कृति तैयारी करिवे. Major challenge of gender equality की प्रतिष्ठा करिवे. एगुडिकर मूल रूट को तांको दिबाक पड़ियो कोठी की ना colonial history ताहाले नै करिवे. So the resistance movement during colonialism in Latin America was a movement of valiant struggle, courage and sacrifice. आमे यदि स्वाधीनता संग्राम को लैटिन अमेरिका रे देखिबा बा उपनिवेश विरोधी संग्राम को देखिबा ये अति साहसिक संग्राम सब जो शिक्षा लाभ करबा हम तुम
तीन चार्टा ना कहली परवर्ती पर्यायर यू विल फाइंड इट अर्जेंटीना, क्यूबा, मेक्सिको, पेरू, चिली, कोलंबिया, ग्रेनाडा, Venezuela. In all these countries, you will find the heroic struggles of common people against colonial masters. औपनिवेशिक शासन विरोध रे जो ऐतिहासिक साहसी संग्राम लैटिन अमेरिकार जनगण करिसेंती से इतिहास रो अनेक शिक्षा लाभ करिवार अछि. That we need to study, that we study in future chapters, but for today this is 2 chapters we completed. So thank you. Tell your friends to join on the next class. I think that is on 1. Guys, yes, 5. Hello, Sunita and Pankajini. Thank you, sir. हाँ 5टा से बस रे के थिला बस स्टैंड रे सर तो मु अच्छा ही थिलु मु आसीथिले असाइनमेंट जमा करिया पई तमे पहुंच गेलनी घरे ना नाइ सर मु एक्चुअली झारखंड रुहे मु सकाळे आसी पहुंची असाइनमेंट एठी जनक रिलेटिव घर रही कि संध्या रे जाके हम जेकेबीके कॉलेज असाइनमेंट सबमिट कली तापर मु एबे बस स्टॉप रे बसिची मोर बस अछि जाके 8टा बळको ओहो अच्छा 8 यू रिटर्न टू झारखंड ना हाँ सर तापर काली प्रॉपर्ली क्लास अटेंड करबी आ झारखंड को चक्रधरपुर नाइ सर किरीबुरु माइंस एरिया yes I know Kiri टेंसा पर तो Kiri रो हाँ सर okay thank you सर